رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ابھی ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم 92 زبور، 93 زبور اور 94 زبور کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلی قسط میں ہم نے زبور 91 کا مطالعہ کیا تھا، جس میں ہم نے جانا کہ اس زبور میں مسیح کے کامیاب کام کا ذکر ہوا۔ اس کے برعکس زبور 90 میں قوم کی ناکامی کا ذکر ہوا جو ان کو بیابان میں ملی۔ لیکن آج ہم زبور 92 سے مطالعے کا آغاز کریں گے، اور زبور 92 کا عنوان ہے سبت کے دن کے لیے گیت۔ آج ہم بھائی یوسف کے ساتھ اس کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ خوش آمدید بھائی۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں موجود ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، آج کی قسط میں ہم زبور 92، 93 اور 94 کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ زبور 92 کا عنوان ہے مزمور سبت کے دن کے لیے گیت، سبت کے دن کے کیا معنی ہے؟ سبت ایک عبرانی لفظ ہے، یہ عبرانی لفظ بھی ہے اور یہ ہفتے کے ایک دن کو کہتے ہیں، پر میں کہوں گا اس کے اصل معنی ہے آرام، اس لیے کہ خدا نے 6 دن آسمان اور زمین کو بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، سو اس دن کو سبت یعنی کہ آرام کا دن کہتے ہیں۔ سو میں کہوں گا کہ اس زبور میں آرام کی بات ہوئی، کیونکہ یہاں پر ایک وعدہ ہے، اور یہاں پر یہ لکھا ہے کہ مقدسین اور زمین کے سب آرام پائیں گے۔ خدا نے آرام کیا، اور عبرانیوں 4 باب کے مطابق جہاں لکھا ہے جب آسمان اور زمین کا مقصد تکمیل کو پہنچے تو خدا آرام کرے گا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ اس زبور میں اخلاقی اور روحانی، نبوتی اور تدبیر کے لحاظ سے اس خوشی کے وقت پر بات ہوئی جب خدا اور انسان آرام پائیں گے۔ کیا آرام کے معنی تھکان کا خاتمہ ہے، جیسے کوئی تھکا ہوا شخص آرام کرے، یا اس کے معنی مختلف ہیں؟ دیکھیں بھائی، ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے 7ویں دن آرام کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تھک گیا اور اس نے آرام کیا، بلکہ جب اس نے اپنا سارا کام پورا کر لیا اور جو کچھ اس نے بنایا تو دیکھا اور کہا کہ اچھا ہے، تو آرام کیا۔ کوئی آرام کرے، مثلا جیسے ماں کہتی ہے کہ بیٹی کی شادی تک میں آرام نہیں کروں گی، تو وہ کس بات سے تھک جاتی ہے؟ یہاں پر آرام یعنی اس کے احساسات تسلی بخش ہوں، مثلا کہ اس کے بچے وہاں پر پہنچ گئے ہیں جہاں وہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے، حاصل کرنا اور اطمینان کا احساس ہونا، جیسے کوئی مصور اپنی تصویر مکمل کر کے آرام محسوس کرتا ہے۔ بالکل۔ میں چند آیات پڑھوں گا، پھر آپ سے سوال پوچھوں گا۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا، اے حق تعالی۔ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا، دستار والے ساز اور بربت پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا، میں تیری صنعت کاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا۔ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں۔ حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بدکار پھولتے پھلتے ہیں تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہوں، لیکن تو اے خداوند عبدالآباد بلند ہے، کیونکہ دیکھ اے خداوند دیکھ تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے، سب بدکار پراگندہ کر دیے جائیں گے، لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے، مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے، میری آنکھ سے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا، میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے۔ بھائی یوسف، ان آیات پر میں آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ اس نے ایک اچھی بات سے یہاں پر شروع کیا ہے، وہ کہتا ہے کیا ہی بھلا ہے، کیا بھلا ہے، کیا ہی بھلا ہے خدا کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا۔ دراصل خداوند کے نام کی تعریف کرنا اور شکر گزاری کرنا اور اس کو مبارک کہنا ایک بہت ہی اچھی عادت ہے، ایسا کہنا بہت اچھا ہے۔ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا، مطلب کہ جب رات ہو تو سارے دن میں خداوند کے کاموں اور اس کی وفاداری کو یاد کر کے اس کا شکر کرنا۔ میں اپنے دن کا آغاز اس کی شفقت کو یاد کر کے کرتا ہوں اور مانگتا ہوں کہ اس کی شفقت دن بھر میرے ساتھ ساتھ رہے۔
सो सुबह को उसकी शफकत और रात को उसकी वफादारी का इजहार करना मैं कहूँगा कि अच्छी बात है। और फिर इसके बाद खुदा के कामों और दुनिया की तख्लीक का जिक्र हुआ। क्योंकि ऐ खुदावंद तूने मुझे अपने काम से खुश किया, मैं तेरी सन्नतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। और फिर लिखा है, लेकिन हैवान हसलत नहीं जानता और अहमक उसको नहीं समझता, जो इंसान खुदा के कामों की तारीफ नहीं करता और तख्लीक में खुदा के नक्श को नहीं पहचानता, जो यही सोचता है कि सब अपने आप बना, यानी कि खुद से बना, उसको इन सब में खुदा का हाथ, हिकमत, अजमत दिखाई नहीं देती। जबूर नवीस ने उसको हैवान हसलत और अहमक कहा। अहमक और हैवान खसलत के मुकाबले में उसने 12वीं आयत में सादिक की बात की और इसकी तफसील बयान की। भाई यूसुफ, आप हमें सादिक शख्स की देखिए भाई, खुसूसियात मैं बताएं। यहाँ पर ये कहूंगा कि ये एक मुआजना है। 7वीं आयत में उसने कहा कि शरीर घास की मानिंद उगते हैं और सब बदकार फलते और फूलते हैं। इसके बरक्स सादिक घास की तरह नहीं कि फलें और फूलें और फिर गायब हो जाएं, जबकि सादिक खजूर के दरख्त की मानिंद सर बुलंद होगा। वो लबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। और खजूर का दरख्त फतह और लबनान का दरख्त जलाल की एक वाज़ेह अलामत है। उनकी उम्र लंबी होती है। खजूर के दरख्त की जड़ें लंबी और मजबूत होती हैं, इसलिए यह दरख्त रेगिस्तान में पाया जाता है। और मैं कहूँगा कि लुबनान का दरख्त भी ऐसा ही है, जबकि इसके बरक्स घास की जड़ें सतई होती शरीर हैं। क्या? वो कट जाते हैं। कट जाती है। इसीलिए शरीर घास की मानिंद है जो कि काट डाला जाता है, सादिक खुदावंद में कायम है। यहाँ पर उनको खजूर के दरख्त कहा। वो खजूर के दरख्त की मानिंद सरसब्ज होगा और लुबनान के दरख्त की मानिंद बढ़ेगा। याद करें कि दानियाल के तमाम दुश्मन जो थे वो सब के सब घास की मानिंद थे। वो तबाह हुए और उन्हें शेरों की मांद में फेंक दिया गया, जबकि दानियाल को इज्जत मिली क्योंकि वो दरख्त की मानिंद था। सही। भाई यूसुफ, फिर 13वीं आयत है, जो खुदावन के घर में लगाए गए हैं वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। वो बुढ़ापे में भी बुरूमंद होंगे। वो तरोताज़ा और सरसब्ज रहेंगे ताकि वाजे करें कि खुदावंद रास्त है, वही मेरी चट्टान है और उसमें नारास्ती नहीं। इसमें बुढ़ापे में फल लाने की बात की गई है। भाई यूसुफ, आप हमें बताइए कि बुढ़ापे में सादिक की क्या खुसूसियात होती हैं। उसने बुढ़ापे या बुजुर्गी से शुरू नहीं किया। और मैं कहूँगा कि 13वीं, 14वीं और 15वीं आयत में 3 मरहले हैं। 13वीं आयत में वो लगाए गए और लगाया जाना दरअसल शुरुआत है। और मैं कहूँगा ये बचपन का जिक्र है जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं। इन पर फूलों का आना, सरसब्ज रहना अगला मरहला है और इसमें जवानी का जिक्र हुआ है। फूल लगने का वक्त या उसको हम बालिग हुए या जवानी का दौर कह सकते हैं, वो हमारे खुदावंद की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। इसके बाद फल लाने की बात है और ये बुढ़ापे का दौर है। और मैं कहूँगा ये शानदार है कि सादिक अपने बुढ़ापे में भी बरूमंद होगा। वो तरोताज़ा और सरसब्ज रहेंगे। आखिर क्यों और किस तरह वो फल लाते हैं? ये इजहार करते हैं कि खुदावंद भला है। जब हम किसी बुजुर्ग आदमी या बूढ़ी औरत को देखें तो वो हमेशा खुदा के कामों का और उसकी वफादारी के मुतल्लिक अपने तजुर्बे का वाज़े और खुलकर बयान करते हैं और उनके अल्फाज खूबसूरत होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि याकूब, मूसा और फिर दाऊद के अल्फाज थे। वो बुढ़ापे में भी बरूमंद होंगे और वो तरोताज़ा और सरसब्ज रहेंगे ताकि वाज़े करें कि खुदा रास्त है, वही मेरी चट्टान है और उसमें नारास्ती नहीं। कुछ वफादार मुकद्दसीन खुदा के लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 90 बरस से ज्यादा है। वो बीमारी की वजह से सब भूल चुके हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों के नाम भी याद नहीं। लेकिन जब उनसे खुदावंद का पूछें तो वो खुदावंद की शफकत और बाइबल के हवालाजात की बात करते हैं। यकीनन वो बूढ़े भी हो जाएं तो वो बुढ़ापे में भी फल लाते हैं। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। क्या आप चाहते हैं कि आज आप कुछ अच्छा करें? क्या आप चाहते हैं कि अच्छी सिमत की जानिब जाएं? लिहाजा आप जहां भी हैं खुदावंद का शुक्र करें, उसके अजीम नाम की तारीफ करें और उसके जलाल का शुक्र करें। आपको चाहिए कि सुबह सवेरे उसका शुक्र करें और रात को भी उसका शुक्र करें। उसकी मोहब्बत, नरमी और वफादारी का शुक्र करें कि उसने दिन भर आपकी हिफाजत की
और पूरा दिन आपको महफूज रखा। हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए ज़बूर 92, ज़बूर 93 और 94 के मुताले को जारी रखते हैं। जी, सवाल कीजिए। 10वीं आयत है, लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानित बुलंद किया, मुझ पर ताज़ा तेल मला गया है। मुझे जंगली सांड और ताज़ा तेल का मतलब समझाएं। इन अल्फाज के क्या मानी है भाई यूसुफ? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, बाइबल मुकद्दस में सींग ताकत की अलामत है, और फिर लिखा है कि तूने मेरे सींगों को जंगली सांड के सींग की मानिंद बुलंद किया है, मुझ पर ताज़ा तेल मला गया है। और बाइबल में तेल रूहुल कुद्स की वाज़े तस्वीर है। और आए हम ज़बूर 75 की आखिरी आयत को देखते हैं। यहाँ लिखा है, और मैं शरीरों के सब सींग काट डालूंगा, लेकिन सादिक के सींग ऊंचे किए जाएंगे। रास्तबाजों की दो नुमाया खसूसियात हैं। पहली चीज उसकी ताकत है, और इसकी वजह क्या है? ताज़ा तेल, और ये रूहुल कुद्स है। लिखा है कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत जोर आवर हो जाओ, और जब रूहुल कुद्स हम में आकर बसता है तो हमें नया जोर बख्शता है। जी हाँ, नया जोर बख्शता वो है। जोर देता है और नया करता है। सही। अब मैं ज़बूर 93 शुरू करना चाहूँगा। आप हमें इसके उन्वान पर अपनी राय दें और ये किसके बारे में है। देखें, यहाँ पर ज़बूर का आगाज इससे हुआ कि खुदा सल्तनत करता है। मैं इसको यही उन्वान देता हूँ कि खुदा सल्तनत करता है। और मैं कहूँगा कि कोई ये सवाल कर सकता है कि वो आज भी सल्तनत करता है। दरअसल मेरा नहीं। सवाल है कि क्या वो बादशाह नहीं है? मैं कहूँगा कि दरअसल वो बादशाह है, और हम ये मुकाशवा के 11वें बाब और उसकी 17वीं आयत में वाज़े तौर पर पढ़ते हैं, तूने अपनी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की। और ये बात मुस्तकबिल में वाज़े होगी, और उस वक्त एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। और इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि खुदावंद ने दुनिया और शैतान को एक मौका दिया है कि वो अपना खेल खेल लें, लेकिन एक दिन खुदा का काम वाज़े होगा और वो अपनी अजमत और कुदरत के साथ सल्तनत करेगा। मुकाशवा 19 में लिखा है, खुदावंद हमारा कादर मुतलक खुदा बादशाही करता है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान सारी जमीन हों। पर उसके बादशाह होने की तमजीद होगी, बिल्कुल और जमीन पर भी ऐसा ही होगा जैसे आसमान पर होता है। सही। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जी जरूर। खुदावंद सल्तनत करता है, वो शौकत से मुबल्लस है, खुदावंद कुदरत से मुबल्लस है, वो उससे कमर बसता है, इसलिए जहान कायम है और उसे जुम्बिश नहीं। तेरा तख्त कदीम से कायम है, तो अज़ल से है। सैलाबों ने ऐ खुदावंद, सैलाबों ने शोर मचा रखा है, सैलाब मौजज़न है बहेरों की आवाज़ से, समुंदर की ज़बरदस्त मौजों से भी खुदावंद बुलंदो कादिर है। तेरी शहादतें बिल्कुल सच्ची हैं, ऐ खुदावंद अब्दुल आबाद के लिए कदूसियत तेरे घर को ज़ेबा है। उसने कहा कि खुदावंद ने बादशाही की है, तेरा तख्त कदीम से कायम है। हम जानते हैं कि मुस्तकबिल में ये होगा, तो उसने ऐसा क्यों कहा कि ये कदीम से कायम है? देखें, खुदा बादशाह है और वो हर दौर में बादशाह है, लेकिन इसका नबूवती पहलू यही है कि वो वक्त आएगा जब और कुछ ना होगा और उसकी बादशाही होगी। और मैं कहूँगा कि खुदा ने अपने तमाम दुश्मनों को मौका दिया, मगर गैर कौमों के दौर के बाद और शैतान के चले जाने के बाद कुछ बाकी ना रहेगा सिवाय उस कदीम तख्त के जो खुदा का तख्त है, और वही सारी जमीन पर होगा। भाई यूसुफ, हालांकि उसने मसीह की सल्तनत और उसके क़याम की बात की, पर तीसरी आयत में फरमाया, सैलाबों ने ऐ खुदावंद, सैलाबों ने शोर मचा रखा है। सैलाब मौजज़न है, उसने सैलाबों के शोर और लहरों के शोर की बात की। सैलाब मौजज़न है, ये कब और कहाँ होगा? दरअसल ये मसीह की बादशाही से पहले है। सैलाब मसीह के दुश्मनों की अलामत है। आइए यसाया 59 पढ़ते हैं, और यहाँ उसकी 19वीं आयत में
वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो दरिया के सैलाब की तरह आएंगे जो खुदावन के दम से रवा हों, और यसाया 57 की आखिरी आयत में लिखा है, लेकिन शरीर तो समंदर की मानिंद हैं जो हमेशा मौजज़न और बेकरार है, जिसका पानी कीचड़ और गंदगी उछालता है। और मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं। सो खुदा के दुश्मन चाहते हैं कि उसकी बादशाही आने में ताखीर हो। आज हम भी यही सब देखते हैं। सैलाब शोर मचाते हैं और मौजज़न हैं, लहरों की आवाज बढ़ती है। और मैं कहूंगा कि उन सब को ये पसंद नहीं कि खुदा बादशाही करे। तो फिर क्या खुदा बादशाही नहीं करेगा? मुकाशफा 11:17 में मसीह के लिए लिखा है, तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की। मौजूदा वक्त में सैलाब हैं और सैलाब मौजज़न हैं, लेकिन वक्त आने को है जब ये सारा शोर खत्म होगा और सिर्फ खुदा उसका नाम होगा। और हम ये भी जानते हैं कि खुदा की बादशाही के आने से पहले दुनिया के तमाम इंसानों के लिए यहाँ दौर मुश्किल और सख्त होगा, मगर खुदावंद आएगा ताकि इन तमाम मंसूबों को नाकाम करे, क्योंकि हमारा खुदावंद सच में कादिर मुतलक है। सो अभी ये सैलाब मौजज़न है, दुश्मनों के काम जारी हैं, इसका पानी कीचड़ और गंदगी उछालता है। मुसीबत के दौर में इस सब की इंतहा होगी जब तक मसीह ना आए। बिल्कुल। मसीह आएगा कि सब मौजों और लहरों को साकिन करे और जमीन पर उसकी बादशाही से जी, अमन कायम हो। बिल्कुल। भाई यूसुफ, यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। ज़बूर 94 की पहली आयत है, खुदावंद ए इंतकाम लेने वाले खुदा। उसने खुदावंद को पुकारने के लिए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल क्यों किया? इंतकाम लेने वाले खुदा, जी बिल्कुल सही। ये उन्वान निस्बतन सख्त है। हम जानते हैं कि वो फसल का खुदा है, लिहाजा आप इसके बारे में क्या कहेंगे भाई यूसुफ? देखें, बहुत से लोगों का यही मसला है कि जब तक खुदा फजल का खुदा है, वो इंतकाम लेने वाला खुदा नहीं हो सकता। मुझे इसमें कोई तजाद नजर नहीं आता कि वो फजल का खुदा है और इंतकाम लेने वाला खुदा भी है। और रोमियो के 11वें बाब में लिखा है, बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की मेहरबानी के तो उस पर मेहरबान रहा है। और यसाया 61वें बाब में लिखा है, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का इश्तिहार दूं। ये फजल का खुदा है, और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं। मुझे इसका दिफा करने की जरूरत नहीं। मुझे इसलिए इसका दिफा करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये खुदा के मुकाशफा का हिस्सा है। और फिर आगे खुदा कुछ यूं फरमाता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है और बदला मैं दूंगा। और फिर इसके आगे वो कहता है, जिंदा खुदा के हाथ में पड़ना हौलनाक बात है। बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा में ये बात मौजूद है। लोगों ने खुदा का एक खाका कायम किया और वो फजल का खुदा है, उसमें इंतकाम नहीं। और ये तस्वीर भी दुरुस्त नहीं कि उसकी मोहब्बत में पाकीज़गी नहीं। बाइबल मुकद्दस हरगिज इसकी जिम्मेदार नहीं, बल्कि खुदा इस सब से ज्यादा है। और इंतकाम लेना भी खुदा के जलाल के कामों में से एक है। और रोमियो 9 में लिखा है, उसने बताया कि खुदा गजब के बर्तनों के साथ तहम्मुल से पेश आता है। बस क्या ताजुब है कि अगर खुदा अपना गजब जाहिर करने वाला और अपनी कुदरत आश्कार करने के इरादे से गजब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे, नहायत तहम्मुल से पेश आया। और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की बदौलत रहम के बर्तनों के जरिए आश्कार करे जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए थे। खुदा के जलाल और उसकी खुसूसियात में बदला और गजब शामिल है। और दूसरी तरफ खुदा अपना फजल जाहिर करता है। और मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि अभी हम सब फजल के दौर में जी रहे हैं, लेकिन फजल के दौर के खात्मे पर ऐसा होगा और हमारे खुदा के बदले का दिन आएगा। और लूका 21 में लिखा है, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी, वो इंतकाम लेगा। और समाइन इस बात पर ध्यान रखें, क्योंकि जो कोई फजल का इनकार करता है उसके लिए बाद में इंतकाम है, वो अपना ही नुकसान करता है। सो इंतकाम भी खुदा के कामों में से एक है। इसका ताल्लुक अदालत से है। वही सारी जमीन की अदालत करता है, वही जी। करता है। सही। जब उसने इंतकाम लेने वाले खुदा की बात की कि वो उठकर जमीन की अदालत करेगा, उसने उनकी बात की जिनकी अदालत हुई।
उसने दूसरी आयत में कहा कि वो मगरूर हैं, कि वो शरीर हैं। लिखा है सब बदकार लाफ्ज़नी करते हैं। ऐ खुदावन, वो तेरे लोगों को पैसे डालते हैं और तेरी मेरास को दुख देते हैं। वो बेवा और परदेसी को कत्ल करते और यतीम को मार डालते हैं और कहते हैं कि खुदावन नहीं देखेगा और याकूब का खुदा ख्याल नहीं करेगा। उसने ये बयान किया कि उनके दिल का ख्याल है कि खुदा नहीं देखता। इस पर अपनी राय दीजिए। खुदा अदालत नहीं करेगा। दीनदार खुदा का खौफ मानते हैं। और फिर लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है। और हमने ये भी देखा कि बेदीन लोग मगरूर और शरीर और बदकार हैं, बल्कि वो कातिल हैं। वो बेवाओं को कत्ल करते और यतीमों को मारते हैं, वो कातिल हैं। और हमें अपने आसपास ऐसे लोग दिखाई देते हैं। और मैं कहूँगा कि आज लोग ये फरियाद करते हैं कि खुदा का इंसाफ कहाँ है और हुकूमत कहाँ है, और हम गिला करते हैं कि उसने उन शरीरों को अब तक जिंदा क्यों रखा है। लेकिन मैं कहूँगा कि उसका शरीरों को हलाक करना उसकी शफकत है। और ज़बूर 136 में लिखा है, उसकी शफकत अब्दी है। उसने क्या किया? उसने सैऊन के बादशाह और बसन के बादशाह ऊज को मारा, उसकी शफकत अब्दी है। उसने फिरौन को हलाक किया, उसकी शफकत अब्दी है। यानी शरीरों का हलाक होना भी खुदा की शफकत है। आज हमारी ख्वाहिश है कि हम आंख बंद करके दोबारा खोलें तो तमाम शरीरों की हलाकत हो चुकी हो, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि हम फजल के दौर में जी रहे हैं। लेकिन फजल के जल्द खत्म होने के बाद सब शरीर हलाक होंगे और खुदावंद अपनी सल्तनत को गुनाह और बेदीनी से पाक करेगा। इस ज़बूर की आयत है और कहते हैं कि खुदावन नहीं देखेगा और याकूब का खुदा ख्याल नहीं करेगा। जिसने कान दिया क्या वो खुद नहीं सुनता? जिसने आंख बनाई क्या वो नहीं देख सकता? क्या वो जो कौमों को तंबीह करता है और इंसानों को दानिश सिखाता है सजा ना देगा? खुदावंद इंसान के ख्यालों को जानता है कि वो बातिल हैं। इसका इन्हिसार खुदा पर है। आप खुदा सही। के बारे में क्या कहेंगे? खुदा सादिक है, वो रास्त है, वो कादिर है। और फिर अलीहू ने भी यही कहा। सो हम खुदा की रास्तबाजी और उसके रहमो करम पर तकिया करते हैं। हम खुदा से डरते नहीं क्योंकि वो अदल करता है। ये उसका करम है और हम ये चाहते हैं कि ये हो जाए। वो अपना करम करता है और ईमानदारों से भलाई करता, अदालत करता है, ताकि उनको शरीरों से बचाए जो तौबा नहीं करते हैं। उसने हमें कान दिए, सही, वो सुनता है। बिल्कुल। उसने अपनी बात की, इस पर अपनी राय दें। उसने पहले शरीर की बात की, फिर 17वीं आयत से उसने अपनी बात की। अगर खुदावन मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसल चला तो आए खुदावन तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। भाई यूसुफ, इन अल्फाज पर अपनी राय दीजिए। देखें भाई, मैं कहूँगा कि कभी कभी ईमानदारों को भी फिक्रें घेर लेती हैं, और जब कभी मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो खुदा उनका अजाला करता है। और लिखा है कि तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। और मैं कहूँगा कि इसकी सबसे खूबसूरत तस्वीर दूसरे करंथियों के पहले बाब में वाजे दिखाई देती है, जहाँ पालूस अपनी आजमाइश का जिक्र करता है कि उन्होंने दुख और बोझ उठाया। लेकिन इसके साथ ही मैं कहूँगा कि दूसरे करंथियों के पहले बाब में 7 मर्तबा यहाँ तसल्ली को बयान किया गया। खुदा फिक्रें आने देता है पर वो तसल्ली भी देता है। पर ऐसा क्यों? ताकि हम भी उन्हें तसल्ली दें जो मुश्किल में हो। और इसीलिए जो तसल्ली खुदा ने दी वो इसलिए दी ताकि हम खुदा की तसल्ली को पहचानने का जरिया बने। और जब हम आजमाइश में पड़ने वाले से तसल्ली बख्श अल्फाजों को सुनते हैं तो हमें अपनापन महसूस होता है। जी, लोग कहते हैं तबीब के बजाय तजर्बाकार से पूछें। जब आप सही। किसी ऐसे शख्स को सुने जो आपकी तरह दर्द से गुजरा हो तो इससे आपकी मदद होती है। खुदावंद की हर तरह ही हमारे पहलू से आजमाइश हुई, और ये अच्छा होता है कि हम जैसा हमारे साथ हो और वो भी उन्हीं हालात से गुजरा हो और खुदावंद ने उसे तसल्ली दी हो, और अब वो हमारी तसल्ली का बाइस बने। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने आज क्या सीखा।
اگر ایماندار بزرگی میں پھل لانا چاہیں تو ضروری ہے کہ خداوند کے گھر اور اس کے کلام میں اپنی جڑوں کو مضبوط رکھیں۔ صحیح۔ ہم نے سادے کی 2 خصوصیات دیکھی، وہ کھجور اور لبنان کے درخت کی مانند ہے۔ یہ فتح اور جلال کی نشانی ہے۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسے بنے۔ مجھے خداوند کے بارے میں یہ پسند ہے کہ اس کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ اس کا ایک ہی پہلو ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ صرف فضل کا خدا ہے، لیکن وہ انتقام لینے والا خدا بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دن کے شروع ہوتے ہی خداوند کی شفقت مانگے اور دن کے آخر میں دن بھر کے لیے اس کے وفاداری اور اس کے رحم کا شکر ادا کریں۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کو آپ کا برکت بھی دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں آج آپ کو ایک وعدے کے متعلق بتاتا ہوں۔ خدا کی شفقت باطل نہیں ہوتی۔ جب سیلاب معجزن ہوں، بے شک وہ شور مچائیں، آپ نے گھبرانا نہیں۔ خداوند کے آنے تک وہ ایسے ہی رہیں گے، کیونکہ خدا قادر مطلق اور قادر خدا ہے۔ آپ جس بھی سیلاب سے گزریں، چاہے وہ شریروں کا سیلاب ہو، اگر شریر آپ سے جھگڑیں، اگر آپ کسی بیماری سے لڑ رہے ہوں، اگر آپ اپنے حالات سے لڑ رہے ہوں، دشمنوں سے گھرے ہوئے ان سے لڑ رہے ہوں، جان لے خداوند قادر ہے۔ حتمی فیصلہ اس کے پاس ہے، وہ سب پر قابض ہے۔ خداوند جو بلندی پر ہے وہ قادر ہے۔ رات کی دہشت سے نہ ڈریں، سیلابوں سے نہ گھبرائیں، ظالموں کا خوف نہ مانیں، دہشت گردوں سے مت ڈریں، دشمنوں سے مت ڈریے، کیونکہ خداوند طاقتور ہے، خداوند قادر ہے اور وہ اپنی قدرت سے اس تماشے کا خاتمہ کرے گا۔ فقط خداوند اور اس کا نام ہوگا۔ آنے والی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعينيا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد لإيديك. قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعينيا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد لإيديك. قلبي اتعلق بيك، انت كل ما ليا. قلبي اتعلق بيك وبحبك يا فدية. قلبي اتعلق بيك، انت كل ما ليا. قلبي اتعلق بيك وبحبك يا فدية. ملجئي وحصني، صخرتي القوية وفرحي دوما فيك.